Hello students, so in this lecture we will start our module 3 and our third module is human eye and colorful world. Okay, so in this module we will learn three topics. First topic is introduction to human eye, next topic is accommodation of eye, and third is defects in eye and corrections. Okay, so all these three topics are important. So we will start with our first topic, and the first topic is introduction to human eye. Okay, so let's start this lecture. So the human eye is the organ which gives us sense of sight. Okay, so we are able to see the things around us because of this eye, human eye. Okay, now the human eye works on the reflection of light, okay, through a natural convex lens made of transparent living material and enables us to see things around us. Okay, so this is a lens. Okay, this is a convex lens and the refraction take place through this convex lens and we are able to see the objects or things around us. Okay, now let's see the main parts of human eye. So these are the main parts of human's eye. First is cornea, second is iris and pupil, third is eye lens, then ciliary muscles, and then retina and optic nerve. Now we will see each part one by one and also see the working of each part. Okay, तो सबसे पहले हम लेते हैं कॉर्निया को. So this is a cornea. As you can see, this is a cornea. So cornea is a front part of a human eye. Okay, human eye का जो front part होता है उसको क्या बोलते हैं हम? cornea. Okay, now you can see this the cornea is a convex in shape. जो cornea होता है its shape is convex. Okay, and the light ray first comes into the eye through the cornea. जो light ray होती है वो सबसे पहले eye के अंदर कैसे आती है? cornea के थ्रू आती है. Okay, so this is a front part of a eye. Okay, now after cornea, second part is iris and pupil. Okay, so this is iris, you can see, and this hole in between the iris is called, at the middle of iris there is a hole and this hole is called pupil. Okay, सबसे पहले iris क्या होता है? Iris एक diaphragm होता है, colored diaphragm, and it is flat in shape. Okay, it is a colored diaphragm and it is flat in shape. Okay, so the color of this diaphragm decides the color of a eye. ओके, कुछ आईज जो होती हैं ब्राउन होती हैं, कुछ आईज ब्लैक, कुछ ब्लू. नाउ दिस कलर ऑफ आई इज डिसाइडेड बाय द कलर ऑफ आइरिस. ठीक है, सो आइरिस क्या होता है? कलर डायफ्राम होता है, फ्लैट होता है. नाउ इन मिडिल ऑफ आइरिस देयर इज अ होल. आइरिस के बिल्कुल मिडिल में क्या होता है? एक होल होता है एंड दैट होल इज कॉल्ड पीपल. इस होल को क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं. ठीक है, नाउ दिस पीपल इज ब्लैक. जो पीपल होता है उसका जो कलर है वो क्या होता है? ब्लैक होता है. ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज देयर इज नो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस थ्रू अ पीपल. पीपल से जो है कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता. देयर इज नो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस थ्रू अ पीपल, सो डैट इट्स कलर्स अपीयर्स ब्लैक. ओके, नाउ वर्किंग क्या होती है आइरिस और पीपल की? तो पीपल विल डिसाइड डेट हाउ मच लाइट विच कम्स थ्रू कॉर्निया विल गो ऑन टू आई लेंस. पीपल डिसाइड करता है कि कितनी जो लाइट है वो कहाँ पर जाएगी? आई लेंस पर. ओके, और पीपल की जो ओपनिंग क्लोजिंग है या पीपल का जो साइज है वो डिसाइड करता है आइरिस. तो आइरिस किसको कंट्रोल करता है? पीपल को. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आइरिस किसको कंट्रोल करता है? पीपल को. और पीपल क्या डिसाइड करता है? कितनी लाइट जो है वो आई लेंस पर जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, समवन इज स्टैंडिंग इन अ डार्क रूम वेयर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज वेरी लो. ऐसा रूम है जहाँ पर लाइट जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम है. तो उस केस में अगर आई को ऑब्जेक्ट देखना है तो मैक्सिमम लाइट जो है वो आई लेंस पर जानी चाहिए. ठीक है, अगर डार्क रूम में कोई अंधेरा कमरा है जहाँ पर लाइट बहुत कम है तो उस केस में अगर आई को ऑब्जेक्ट देखने हैं तो या हमें कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम लाइट विल गो ऑन टू द आई लेंस. तो उस केस में क्या होता है? जो ओपनिंग होती है पीपल की वो मैक्सिमम हो जाती है. ओके, ओपनिंग जो होगी या जो साइज ऑफ पीपल है वो क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा. तो साइज ऑफ पीपल लार्ज होने की वजह से जो है मैक्सिमम लाइट जो होगी, लाइट रे विल गो
ऑन टू आई लेंस, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम साइज होगा प्यूपल का वो कौन करेगा, आइरिस, क्योंकि आइरिस क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, इसके साइज को, प्यूपल के साइज को। इसी तरह से कहीं धूप में अगर कोई पर्सन है और धूप में सडनली धूप में जाता है और कोई ऑब्जेक्ट, ही वांट्स टू सी सम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो सडनली जब वो धूप में जाएगा तो जो लाइट रेज हैं, तो वो जो लाइट रेज आई लेंस पर जाएगी वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कम होने के लिए क्या होगा, आइरिस जो होगा वो पीपल के साइज को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो पीपल का साइज कम हो जाएगा तो कम लाइट रेज, लेस लाइट रेज विल गो टू द आई लेंस, ओके। तो हमें सिंपली ये ध्यान रखना है कि आइरिस क्या होता है। आइरिस एक कलर्ड फ्लैट रिंग टाइप डायफ्राम होता है, ठीक है। इसका कलर जो है वो डिसाइड करता है कि जो आई है उसका कलर किस तरीके का होगा, ठीक है। इसके बिल्कुल मिडिल में एक होल होता है, आइरिस के मिडिल में एक होल होता है ब्लैक कलर का, और इस होल को बोला जाता है प्यूपल, ठीक है। प्यूपल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट रे जो है वो आई लेंस पे जाएगी, और साइज ऑफ प्यूपल कौन कंट्रोल करता है, आइरिस, ओके। सो दिस इज आइरिस एंड प्यूपल एंड इट इज़ अ वर्किंग ऑफ आइरिस एंड प्यूपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आई लेंस, ओके। सो आई लेंस जो होता है वो जेली टाइप मटेरियल का बना होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओके। इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ मेड ऑफ जेली टाइप मटेरियल, ओके। अब आई लेंस क्या करता है, आई लेंस फोकस, जो लाइट रे आई लेंस पर आ रही है थ्रू कॉर्निया, ओके, जो भी लाइट रे आई लेंस पर आ रही है तो आई लेंस फोकस करता है दीज लाइट रेज ऑन अ रेटिना, ठीक है। दिस इज अ वर्किंग ऑफ अ आई लेंस, ओके। इट इज़ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है ये, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कहता है कन्वर्जेंट लेंस होता है, तो सो दैट इट कन्वर्जेस अ लाइट रे एट फोकस द लाइट रेज ऑन अ रेटिना, ओके। सो दिस इज अ वर्किंग ऑफ अ आई लेंस। अब ये आई लेंस जो है वो अपनी पोजीशन पर हेल्ड रहता है, इट हेल्ड ऑन इट्स पोजीशन बाय द स्लेरी मसल्स, ओके। स्लेरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, इनकी हेल्प से जो है ये आई लेंस अपनी पोजीशन पर रहता है। अब स्लेरी मसल्स क्या करते हैं, स्लेरी मसल्स ये करते हैं कि जब भी आई जो है किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, जब भी आई किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, अब चाहे वो ऑब्जेक्ट इसके नियर हो या डिस्टेंट हो, या तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो या नियर ऑब्जेक्ट हो, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ciliary muscles change the shape of this eye lens, okay. So what happens when the shape of this eye lens changes, the focal length is also changes. तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर है या ऑब्जेक्ट नियर है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आई लेंस की शेप चेंज होती है, ठीक है। आई लेंस थिक हो जाता है और थिन हो जाता है। तो ये थिक या थिन जो होता है आई लेंस, ये किसकी वजह से होता है, स्लेरी मसल्स की वजह से, ओके। So ciliary muscles controlled this thing, okay. Now next part is retina. So retina is works as a screen for a human eye. Human eye के लिए जो retina है, it works as a screen. So image will form on a retina. Image जो बनती है वो retina पे बनती है, ठीक है। और sharp image बनने के लिए जरूरी है that the image will form on a retina, ठीक है। Now retina consists of a light sensitive cells, the number of light sensitive cells. जो retina होता है उस पर क्या होता है, retina consists of number of light sensitive cells, and these light sensitive cells are called rods and cones. जो ये light sensitive cell होते हैं इनको बोलते हैं rods and cones. तो rods तो क्या करता है, intensity of light decide करता है, ठीक है, या उसको judge करता है intensity of light को, एंड द कलर ऑफ लाइट जज बाय कोन्स, ओके। क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, तो लाइट सेंसिटिव सेल्स दो टाइप के होते हैं, तो रोड्स होते हैं, कोन्स होते हैं। तो रोड्स तो जज करता है या डिसाइड करता है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड द कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय कोन्स। उसको कौन जज कर लेता है या कैच करता है, पता करता है कोन्स, कौन सी कलर है, कलर ऑफ लाइट, ओके। नाउ दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो लाइट रेज आई हमारे पास, इमेज फॉर्म हुई, नाउ दे बाय दीज सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स converted it into a electrical signals. Now these electrical signals goes through or reach to a brain through a optic nerve. ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं जो कि सेल्स ने, जो रेटिना पे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या करेंगे,
इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलेंगे, जो भी इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, इनको किस में बदल देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर कहाँ जाएंगे, ब्रेन के पास। और ब्रेन के पास कैसे जाएंगे, थ्रू अ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। सो ऑप्टिक नर्व, थ्रू अ ऑप्टिक नर्व these electric signals travels to a brain, and then brain, through a brain decides that what image, what object we are seeing. Okay, now there is a spot, and this spot is called blind spot. Okay, now why it is a blind spot, because it is insensitive of image formation. यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जो होती है वो रेटिना को छोड़ती है, लीव करती है। एट दिस पॉइंट द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना। ओके, सो देयर विल बी नो इमेज फॉर्म। और हमको क्या करें, अगर यहाँ पर आगे इमेज फॉर्म होती है तो हमें जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक डार्क स्पॉट दिखेगा। ओके, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विल नॉट रीच टू अ ब्रेन, सो डेट वी सी अ डार्क स्पॉट इफ द इमेज फॉर्म एट द ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट पर अगर इमेज फॉर्म होती है तो हमें क्या दिखेगा, एक डार्क स्पॉट दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना को छोड़ देती है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो क्या है, ब्रेन के पास नहीं पहुंचते, एंड ब्रेन विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ लास्ट थिंग इज इन बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस देयर इज अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ओके, ट्रांसपेरेंट लिक्विड एक होता है यहाँ पे भरा हुआ, दैट ट्रांसपेरेंट लिक्विड इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ओके, नाउ इन बिटवीन द eye lens and in between the retina there is another transparent liquid, and this liquid is called vitreous humor. Okay, so I hope आपको ये जो important main parts हैं ह्यूमन आई के समझ में आए होंगे और इनकी वर्किंग भी समझ में आई होगी। Okay, so now let's move to some important points. So this is a first, the front part. The front part of the eye is called cornea. It is made of a transparent substance and it is bulging outwards. The outer surface of cornea is convex in shape. The light coming from objects enters the eye through the cornea. Okay. Now next is iris and pupil. So just behind the cornea is the iris. Okay. It is a colored diaphragm. Iris is a flat colored ring-shaped membrane behind the cornea of the eye. There is a hole in the middle of the iris which is called pupil of the eye. Thus pupil is a hole in the middle of the iris. The pupil appears black because no light is reflected from it. Okay, next is eye lens. So the eye lens is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material like a jelly made of proteins. Being flexible, the eye lens can change its shape and it can become thin or thick to focus light onto the retina. Okay. Now next is ciliary muscles. The eye lens is held in position by suspensory ligaments. One end of suspensory ligament is attached to the eye lens and their other end is attached to the ciliary muscles. Ciliary muscles change the thickness of eye lens while focusing. Okay, in other words, the focal length of eye lens can be changed by changing its shape by the action of ciliary muscles. Then retina and optic nerve. The screen on which the image is formed in the eye is called retina. The retina is behind the eye lens and at the back part of the eye. The retina is a delicate membrane having a large number of light sensitive cells called rods and cones, which respond to the intensity of light and color of objects respectively by generating electrical signals. Now what is a blind spot? Now what is the optic nerve? Optic nerve transfer these electrical signals to brain. Okay, blind spot, it is a small area of the retina insensitive to light where the optic nerve leaves the eye. Now the space between cornea and eye lens is filled with a watery liquid called aqueous humor, and the space between eye lens and retina is filled with transparent jelly-like substance called vitreous humor, which supports the back of the eye. Okay, now let's see the working. Now what happens when eye focus to some object, then the light ray will come from the object. Okay, now this light ray will first enter the eye through a cornea.
Now cornea is a convex in shape, so it will converge the light ray. Okay, now it converts the light ray, and then this light ray will go and incident on the eye lens. Okay, now eye lens is the convex lens. Okay, eye lens is a convex lens, so it will further converge the light ray. Okay, and then it converges the light ray and form the image at the retina. Now when the image is formed at the retina, then the cells, the light sensitive cells on the retina converts this into an electrical signal. Okay, now that electrical signal then transfer to the brain through a optic nerve. So when these electrical signals will reach to a brain through a optic nerve, the brain will interpret the object. Okay, or then we are able to see the object or a thing. Okay, so this is all described here. The light ray coming from the object kept in front of us, enter through the cornea of the eye. Okay, pass through the pupil of the eye and fall on the eye lens. The eye lens is a convex lens, so it converges the light rays and produces a real and inverted image of the object on the retina. Okay, then so actually the outer surface of cornea also acts as a convex lens, due to which cornea converges most of the light rays entering the eye. Only the final convergence of light rays is done by the eye lens to focus the image of an object exactly on the retina. The image formed on the retina is conveyed to the brain by the optic nerve and gives rise to the sensation of vision. Okay, so आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि ह्यूमन आई के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है. बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको इन पार्ट्स के बारे में पता हो और इन पार्ट्स की वर्किंग की आपको नॉलेज हो. ओके, सो आई होप नाउ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द main parts of a human eye and also the working of these parts. So thank you very, very much for watching this video. Hello dear students, in this video lecture we will learn accommodation of eye. Okay, so it is a very important topic in a chapter human eye and colorful world. So let's start this lecture. So this is your first point, that a person can see an object clearly when sharp image of a object formed on retina. Okay, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है हमें कि जब शार्प इमेज प्रोड्यूस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की रेटिना पर, देन अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि जब शार्प इमेज फॉर्म होगी किसी ऑब्जेक्ट की रेटिना पर, तभी जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट पॉइंट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डिफरेंट फोकल लेंथ नीडेड टू सी नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल पास है आई के, और कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस पर है. ओके, तो उनको देखने के लिए जो आई है उसको जो फोकल लेंथ है वो डिफरेंट फोकल लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम देखते हैं कि वाई eye required a different focal length to see object at distant position and a near position. ओके, तो यहाँ पर जो distant position है वो हम लेंगे इन्फिनिटी. ओके, और नियर पोजिशन जो है वो है आई से 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन दैट पोजिशन इज कॉल्ड नियर पोजिशन. ओके, नाउ लेट्स सी फर्स्ट केस. सो फर्स्ट केस इज व्हेन अ नॉर्मल आई सीज द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पर है. नाउ लेट्स सी. सो एज यू कैन सी हियर द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इन्फिनिटी पर है. तो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आएंगी, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से जो लाइट रेज आएंगे, दीज लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. जो लाइट रेज होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होगी. अब अगर इफ़ अ पर्सन वांट्स टू सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो उसकी कंडीशन अभी हमने स्टडी करा है कि जो कंडीशन है वो क्या है कि जो इमेज है उस ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म होनी चाहिए रेटिना पर, शार्प इमेज फॉर्म होनी चाहिए रेटिना पर. ओके, तो इस केस में होगा क्या कि व्हेन दीज पैरेलल रेज विल इंसिडेंट ऑन अ आई लेंस. जो आई लेंस है हमारा वो कैसा, कॉन्वेक्स लेंस है. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इन रेज को कन्वर्ज करेगा. क्या करेगा,
कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज कर कर जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म करेगा, रेटिना पर। ओके, नाउ इन दिस केस it is easy to converge these parallel rays। इन पैरेलल रेज को आप इजीली कन्वर्ज कर सकते हैं। ओके, जब ये आई लेंस पर इंसिडेंट होंगी तो आई लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद these rays are easily converge। now in this case we required a आई लेंस ऑफ लेस कन्वर्जिंग पावर। इस केस में जो हमें रिक्वायरमेंट होगी आई लेंस की, वो कैसा आई लेंस चाहिए होगा हमें, लेस कन्वर्जिंग पावर का। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशन P इजिकल टू पावर इजिकल टू 1/4 फोकल लेंथ। ना अगर आपको लेस पावर का लेंस चाहिए, इफ कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस इज लेस, देन इन दैट केस द फोकल लेंथ शुड बी हाई। तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अगर पावर लेस है, पावर लेसर है, तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लार्ज। तो इस केस में जो हमें आई लेंस रिक्वायरमेंट होगी वो आई लेंस कैसा होगा, लार्ज फोकल लेंथ का होगा। ओके, नाउ व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज लार्ज, देन इन दैट केस द साइज और द शेप ऑफ अ आई लेंस इज thin, or we can say that shape of a eyeball is, or a size of a eyeball is thin। okay, so ये points, this point is mentioned here। okay, the parallel rays of light coming from a distant object need a convex eye lens of low converging power to converge them or focus them to form an image on the retina of the eye। the convex eye lens of low converging power is the one having a large focal length। okay, एंड इट इज़ क्वाइट थिन। ओके, तो इसमें हमें जो पॉइंट याद रखने वो पॉइंट ये है कि अगर कोई इफ़ देयर इज़ अ ऑब्जेक्ट विच इज़ एट इन्फिनिटी पोजीशन पर है, तो उस केस में जो हमें आई लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, उस आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या होगी, लेस होगी। और लेस कन्वर्जिंग पावर होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, लार्ज होगी। और लार्ज फोकल लेंथ का जो लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस, उसका साइज़ क्या होगा, थिन होगा। ओके, नाउ लेट्स सी अ नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट नियर बाय पोजीशन, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, नियर बाय पोजीशन पर है। तो इसमें आपको नियर बाय पोजीशन ध्यान रखना है। नियर बाय पोजीशन क्या है, नियर बाय पोजीशन होती है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन दैट पोजीशन इज कॉल्ड नियर बाय पोजीशन। इसको नियर बाय पोजीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम अगर डिस्टेंस होगी तो आई कैन नॉट सी अ ऑब्जेक्ट क्लियरली। 25 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस होगी तो आई जो होगी वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली विज़न या क्लियरली देख नहीं पाएगी। ओके, सो इसलिए जो नियर बाय डिस्टेंस है वो कितने लेते हैं हम, 25 सेंटीमीटर कहते हैं। इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ आई अप टू विच आई कैन सी अ ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, नाउ अगर इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है, नाउ यू कैन सी डेट दीज आर द रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाय ऑब्जेक्ट। ओके, ये रेज जो है वो कहाँ से आ रही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रही है। नाउ यू कैन सी डेट दीज रेज आर डाइवर्जिंग, these rays are diverging। now these rays are diverging। now if a person wants to see this object clearly, then the image should be formed on a retina। okay, अब इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्म होने के लिए, now you can see that if these rays are continuously traveling on the same path, अगर सेम पाथ पे रेस चलती हैं तो इस तरह से ये डाइवर्ज होती जाएगी। तो यहाँ पर जो आई लेंस है वो आई लेंस क्या करेगा, इन रेज को कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, रेटिना पर। ठीक है, तो इस केस में जो हमें आई लेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो आई लेंस क्या होना चाहिए, हाई पावर का होना चाहिए। ओके, द कन्वर्जिंग पावर ऑफ अ लेंस शुड बी हाई। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास पावर का। अगर यहाँ पर हमें हाई कन्वर्जिंग पावर का आपको लेंस की रिक्वायरमेंट है तो फोकल लेंथ कैसी होनी चाहिए, लेसर। ओके, तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ये है कि जो कन्वर्जिंग पावर है हमारे आई लेंस की वो हाई होनी चाहिए। तो हाई कन्वर्जिंग पावर का लेंस चाहिए तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इस फॉर्मूले से लेस होगी। अब लेस फोकल लेंथ जब होगी देन द साइज ऑफ आई बॉल इज बिकम्स थिक। जो आई बॉल है उस या आई लेंस जो है हमारा, उसका साइज जो है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट हियर। सो दिस पॉइंट यू शुड रिमेंबर दैट
the diverging rays coming from a nearby object need a convex eye lens of high converging power to converge them or focus them to form an image on the retina of the eye. Okay, the convex eye lens of high converging power is the one having a short focal length and it is quite thick. Okay, तो एक बार और मैं दोबारा इसको बता देते हैं कि नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए, क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो नीड होगी हमारी वो लेंस की, वो लेंस कैसा होना चाहिए, हाई कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए। और हाई कन्वर्जिंग पावर कब होगी, जब फोकल लेंथ क्या होगी, लेस होगी। और जब फोकल लेंथ लेस होती है तो जो आई लेंस होता है इट बिकम्स थिक, आई लेंस कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है। ओके, सो दीज आर द टू रिक्वायरमेंट्स बाय विच अ पर्सन कैन सी अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड अ नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, नाउ लेट्स see how it happens. So let's see first you can see here a definition of accommodation of eye. So accommodation of eye means the ability of an eye to focus the distant objects as well as the nearby objects on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation of eye. ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ आई का क्या मतलब होता है, अकोमोडेशन आई मीन्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए जो आई होती है इट एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, वो अपनी फोकल लेंथ को क्या करती है, एडजस्ट करती है, और इसी को क्या है, अकोमोडेशन ऑफ आई बोला जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ एन आई एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। देखते हैं कि आई जो है वो अपनी फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करती है। ठीक है, पहला हम केस ले रहे हैं जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इस केस में जो हमें फोकल लेंथ चाहिए वो कैसी चाहिए, लार्ज। और लार्ज फोकल लेंथ कब होगी, जब आई बॉल है वो आई बॉल का साइज़ जो है वो कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, तो आई बॉल का साइज़ थिन कैसे होता है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और आई जो है वो फोकस करती है ऑब्जेक्ट पर, तो आई जब ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड होने की वजह से ये जो सस्पेंशन लिगामेंट्स हैं, सस्पेंशन लिगामेंट्स क्या होते हैं, टाइट हो जाते हैं, या इसमें क्या होती है, टेंशन क्रिएट होती है। ठीक है, ध्यान से देखें, इसमें सिलेरी मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और सिलेरी मसल्स के रिलैक्स होने की वजह से जो सस्पेंशन लिगामेंट्स हैं, ओके, सो ये लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, टेंशन क्रिएट हो जाएगी इसमें। और टेंशन क्रिएट, आप देखें जब ये रिलैक्स होंगे तो इसको खींचेंगे, ये किसको, लिगामेंट्स को। तो लिगामेंट्स क्या करेंगे, फिर आई लेंस को ऊपर की तरफ पुल करेंगे। ओके, आई लेंस जो होता है मेम्ब्रेन की तरह होता है। ओके, तो ये आई लेंस को ऊपर की तरफ पुल करेगा, ये अबव वाला, और ब्लो वाला जो है ये आई लेंस को नीचे की तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी, जो आई बॉल है उसका साइज़ या आई लेंस का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा और ये कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और इसके थिन होने की वजह से जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और लार्ज फोकल लेंथ होने की वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, या कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी। तो इसलिए जो ये रेज आएंगे, दीज पैरेलल रेज देन कन्वर्ज बाय द आई लेंस, एंड आफ्टर कन्वर्जिंग दीज रेज द इमेज विल फॉर्म ऑन अ रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी, फिर रेटिना पर फॉर्म हो जाएगी, एंड अ पर्सन कैन सी अ ऑब्जेक्ट क्लियरली। Okay, and when our object is situated at infinity. Okay, now let's see when object is at nearby position. Now you can see here in this diagram object is at nearby position. Nearby position आपको बताया था, nearby position is a distance of 25 centimeter from a eyeball or a eye से 25 centimeter की distance जो होती है वो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट को बोला जाता है नियर बाय ऑब्जेक्ट, और वो पोजीशन जो होती है उसको बोला जाता है नियर बाय पोजीशन। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दीज रेज आर कमिंग, नाउ दीज रेज आर डाइवर्जिंग। ये जो रेज हैं दीज रेज आर डाइवर्जिंग। अगर हम इनको इनके पाथ पर ही, इन रेज को इसके पाथ पर ही आगे बढ़ाए तो इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी ये रेज। दिख रहा है आपको, दीज रेज विल डाइवर्ज इन दिस वे, बट हियर इन दिस केस वी रिक्वायर्ड अ आई लेंस ऑफ लार्ज कन्वर्जिंग पावर, क्योंकि हमें लार्ज कन्वर्जिंग पावर इसमें चाहिए होगा, क्योंकि ये रेज क्या हो रही है, यहाँ डाइवर्ज हो रही हैं और आपको इस तरह से इनको कन्वर्ज करना है
तभी जो है वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, रेटिना पे फॉर्म होगी। ठीक है, तो हमें लार्ज कन्वर्जिंग पावर का आई लेंस चाहिए होगा। अब लार्ज कन्वर्जिंग पावर का आई लेंस कब मिलेगा, जब फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। और फोकल लेंथ कब डिक्रीज होगी, जब जो आई लेंस है वो कैसा हो जाएगा, थिक। अब आई लेंस थिक कैसे होता है, थिक आई लेंस होता है जब जो सिलेरी मसल्स है क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो व्हेन द सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, उस केस में जो लिगामेंट्स है वो क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं। ओके, जैसे सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये लिगामेंट्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। लिगामेंट्स लूज होने की वजह से पहले इन्होंने क्या करा था, इसको पुल किया था, ऊपर की तरफ पुल किया था और ऐसे या नीचे की तरफ पुल किया था। तो पुल करने की वजह से क्या हो गया था, ये लेंस थिन हो गया था। नाउ अब इसको क्या कर दिया, लूज कर दिया। अब लूज होने की वजह से, बिकॉज ये क्या एक मेम्ब्रेन टाइप का है, ओके, एक तरीके का लिक्विड इसके अंदर फिलअप होता है। ओके, तो जैसे ही इसको लूज छोड़ेंगे तो लूज छोड़ने की वजह से इसका साइज़ जो है वो कैसा जाएगा, थिक हो जाएगा। और थिक साइज़ होने के साथ ही जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से जो पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पावर इंक्रीज होने की वजह से ये जो डाइवर्जिंग रेज आ रही है आई लेंस के ऊपर, ये आई लेंस क्या करेगा, इनको कन्वर्ज कर देगा और कन्वर्ज करके जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म कर देगा, रेटिना पर। ओके, नाउ इन दिस केस a person can see a object clearly which is at a nearby position। दोबारा बता देते हैं, नियर बाय पोजिशन वो पोजिशन है जो कि 25 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम अ आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो पोजीशन होती है वो नियर बाय पोजीशन होती है। और वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर इससे कम डिस्टेंस कर दी जाए तो आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, आई जो है उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगी। मिनिमम जो डिस्टेंस है आई से ऑब्जेक्ट की, जहाँ तक कि वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है, वो डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है रेंज ऑफ विज़न। आई का जो रेंज ऑफ विज़न है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी, और आई कैन से इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। ये क्या कहलाती है, इसकी रेंज कहलाती है, जिसमें कि आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। आई ऑफ अ adult person, okay, a normal eye without any defect can see a object in between 25 centimeter to infinity. Okay, so now let's summarize these points. So we can summarize it, जैसे distant object है infinity position पर है, तो infinity position पर है तो हमें कैसी चाहिए होगी, पावर, लेस पावर चाहिए होगी। लेस पावर मतलब फोकल लेंथ लार्ज होगी। फोकल लेंथ लार्ज होने का मतलब ये है कि जो साइज ऑफ आई बॉल है वो कैसा होगा, थिन होगा। और थिन जब होगा आई बॉल तो सिलेरी मसल्स कैसी होगी, रिलैक्स्ड होगी। ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं अनअकोमोडेट कंडीशन। ओके, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अनअकोमोडेट कंडीशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इस केस में जो सिलेरी मसल्स है वो क्या होती हैं, रिलैक्स्ड होती हैं। ओके, सेकंड जो है, सेकंड केस में है जब ऑब्जेक्ट का है नियर ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर पर। तो 25 सेंटीमीटर पर है तो हमें पावर कैसी चाहिए होगी, लार्ज कन्वर्जिंग पावर। तो लार्ज कन्वर्जिंग पावर के लिए जो फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। फोकल लेंथ लेस कब होगी, जब साइज ऑफ आई बॉल क्या होगा, थिक होगा। और साइज ऑफ आई बॉल थिक कब होगा, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। ओके, और सिलेरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो इस कंडीशन को बोला जाता है अकोमोडेट कंडीशन। ओके, सो आई होप नाउ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि अकोमोडेशन ऑफ आई होता क्या है। ओके, और इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। ओके, thank you for watching this video.